with Ashrit. Okay, so I'll share the PDF of both the lectures with Ashrit after the session gets over, and he'll find some way to share it with you. All right, चलो, so शुरू करें मेरे बच्चों. Should we get started? थ्योरी बहुत कम करेंगे यार. थ्योरी मतलब इस स्टेज पे, मतलब आई लाइक डूइंग थ्योरी, बट इस स्टेज पे आई थिंक थ्योरी की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए. ओके, चलो गाइस, सो लेट अस गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं. So basically, we touched the first three topics of circles, and now in this session we are going to touch the tangents, theorems related to tangents, para point, and the common tangents. Okay, chalo. एक मिनट guys. All right. Chalo guys. So the tangent at any point of the circle is always perpendicular to. I'm skipping this. Should I? I mean, I'm very sure you would want me to skip these. So both the tangents are equal in length. So from any external point, two tangents can be drawn, and both of them are equal in length. So line joining the point with the center. Uh, so these two triangles, they become congruent. This angle is equal to this angle, and so on. Uh, I'm very sure you know about this Pitot theorem. So if there's a circle and the circle is inscribed in a quadrilateral, then the sum of the opposite sides is same. So AB plus CD is equal to AD plus BC. Okay, so this can be proved very easily. दिख ही रहे हो. So this A is equal to A, Z is Z, Y is Y, and X is X. So clearly A plus X plus Y plus Z is A plus X plus Y plus Z. So sum of opposite sides is same. Okay. Alternate segment theorem, very important. In fact, इससे भी ज्यादा important जो है, that is इसका reverse, converse. So converse is more important. So if you find, so अगर एक triangle है इस तरीके से, ठीक है, so अगर ये triangle है, if this is a triangle, and if you find that this angle is equal to this angle, ठीक है, ये angles अगर बराबर दिखाई दे रहे हैं, so clearly this is the tangent to the circumcircle of this triangle. Got it? So this is very important. So converse and observation of converse is very important. Got it? Moving on. So we know this PA into PB is PC into PD. बाहर है तो PA into PB is PC into PD, and यहीं से concept आता है the power of point. So PT square is PA into PB. So we all know this. Okay, and power of point, this is how it is defined. So PO square minus R square. तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से उसका स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज पावर ऑफ पॉइंट. सो इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी जीरो, इट मे बी नेगेटिव. पॉजिटिव अगर ये आउटसाइड है, ऑन दी सर्कल है, इनसाइड है. राइट. सो दिस इज द ओनली थ्योरी. मतलब अब टेंजेंट्स के अंदर इसके अलावा कोई और थ्योरी नहीं है. दैट इज द ओनली थ्योरी हियर. गॉट इट? Got it, everyone. Shall we start with the questions, guys? And again, we'll do the kind of questions, since this has been a long day for you all. So we'll do the kind of questions uh,
which get asked in IOQM. ठीक है, so IOQM में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस की क्या खासियत होती है? So more often than not, there is some hidden thing. कुछ ना कुछ hidden चीज होती है जिसको तुमने मतलब these are called click questions. The geometry questions which get asked in IOQM, they are called click questions. मतलब there is some hidden thing, and if you're able to identify that hidden thing, the answer is there in front of you. Got it? Can you repeat the theorem? But if P is a point and PT is a tangent, then PT square is equal to P into P. Basically, triangle PAT is similar to triangle PBT. PAT और PBT similar है because common angle and this angle is equal to this angle. तो दो एंगल्स अगर सिमिलर है तो अगर यहाँ पे सिमिलरिटी की रेशियोज देखोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा. यस, सो बेसिकली P इज आउटसाइड पॉइंट. P अगर पॉइंट आउटसाइड है तो PT स्क्वायर इज आल्सो द पावर. PA into PB इज आल्सो द पावर. एंड ये बहुत इजीली प्रूव हो जाता है दैट अगर हम बोले PO स्क्वायर minus R square. So PO square minus R square is basically PO plus R into PO minus R. So PO plus R is basically PY and PO minus R is basically PX. So PX into PY is also the power. And हमें पता है कि PX into PY same as PA into PB. So PA into PB is also the power. So अगर पॉइंट बाहर है तो वहां से एक लाइन खींच दो सर्कल के ऊपर. दिन दो पॉइंट्स पे कट करती है तो PA into PB is the power. और अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे PT square is also the power. Got it? Got it? Chalo. So we'll start with a very basic question, the kind of things that you should know, and then we'll try and increase the difficulty level. So again, very simple question to start with, ताकि सब लोग वार्म अप हो जाओ. तो गाइस ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही रीजन के साथ क्लियर कराया हुआ है. इफ दिस इज D पॉइंट, दिस इज E पॉइंट एंड दिस इज F पॉइंट, दिस इज A, ये B है और ये C है. ये क्लियरली पता होना चाहिए दैट दिस लेंथ इज S minus C, दिस इज S minus C, this is S minus B, this is S minus B, this is S minus A, this is S minus A. It should be very clear. मतलब it should be, मतलब I know that you can all calculate this. This is a standard question in class 9th, class 10th NCERT. But ये पता होना चाहिए, as simple as that. Simple. तो S कितना हो गया इसका 15. This plus this upon 2. And C जो है AB का वैल्यू है 10. तो इसका आंसर सीधा 5 है. ठीक है, so very easy to derive, I know that, but this is one thing which should be very clear to each and every one of you. So if this is a point of contact, this is a point of contact, this is a point of contact, these lengths, these should be very clear. Got it? Okay. Not yet, राघव. अभी एडमिट कार्ड आउट नहीं हुए, रोल नंबर्स अभी आए नहीं है. Yes, so if you've done this question, so this is a previous year question, last year question of KV. Yeah, Pranjal, these lectures are getting recorded, bache.
So you'll get it. So those who are not able to attend these classes live, then they'll be able to see the recordings. So ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC in center I. If AI is equal to 3 and the distance from I to BC is 2, what is the square of the length of BC? So these kind of questions, very simple questions. कुछ calculations होती हैं, कुछ basic चीजें होती हैं जो पता होनी चाहिए. So these are the kind of questions which get asked. एंड हमें यही करना है, इसी तरह के क्वेश्चंस की ही तैयारी करनी है. बहुत बार होता क्या है, a lot of times what happens is students keep on asking कि sir is there a good way, is there a better way to do. यार एग्जाम के टाइम पे उस चीज को मत सोचो कि कुछ अच्छा तरीका है या नहीं है. देयर इज नो वे. जस्ट गो विद द फ्लो. एंड अगर तुम 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए 5 मिनट भी ले रहे हो, दैट इज परफेक्टली फाइन. इट इज गिविंग यू 2 marks, and 2 marks in IOQM is such a big deal, guys. Such a big deal, right? So do not think about कि कितना टाइम लग रहा है. So एग्जाम के टाइम पे whatever method, अगर if you sure about the method, just go ahead with it. Amazing, Bhavya. Yeah, distance of course means perpendicular distance, Siddhartha. What is happening? Okay, anyone? क्या किया जाए, क्या किया जाए? So A, B, C. आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई. तो आइसोसेलेस में मजे ही आ जाते हैं. आइसोसेलेस में मजे ही आ जाते हैं, अलग तरह के मजे. आइसोसेलेस अलग तरह के मजे देगा. देखो कैसे. इन सेंटर है आई बॉस. इन सेंटर है आई. अग्निहोत्रा प्लीज बच्चे ये बार बार ये मत करो, ठीक है. इन सेंटर है आई. तो क्लियरली इन सेंटर आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में ये जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है, दिस इज आल्सो द परपेंडिकुलर, एंड दिस यू कैन इजीली प्रूव बिकॉज़ दीस टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. सो इफ दिस इज एन एंगल बाइसेक्टर, these two triangles will be congruent because length same, angle same, and common side. So अगर ये और ये congruent triangles है, तो this and this angle will be same. So clearly this angle will be 90 degrees. So this मतलब it is pretty obvious. ठीक है, so ये कर दिया, D बना दिया. अब क्या बोल रहे हैं? This is I, I. This is I. हम क्या करते हैं? यहाँ से एक circle draw करते हैं. Let us try and draw a circle touching all the 3 sides. Touching all the 3 sides. So let's say this is D, this is E, and this is F. ठीक है. Now guys, क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ? This is I. Can anyone tell me in the chat box what is going to be small r for this? As per the information which is given to us, what is going to be the small r? Can I say, can you all identify that it is going to be 2? So this is 2, this is 2, this is 2. ठीक है, ये 2 है. और स्मॉल r का वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था पिछली क्लास में. दिस इज डेल्टा अपॉन s. बहुत ही बढ़िया. अच्छा, दिस इज 90. ai is given to be 3. So can I say a is going to be root 5? This is going to be root 5. BF पता नहीं. Let's say this is x, this is x, this is x, this is x, because isosceles है, तो ये दोनों सेम रहेंगे. तो हो गया क्वेश्चन. सो अगर मेरे को BC निकालना है, सो BC
square of the length BC. So BC square nikalna, this is 4x square. So again, I need to find x. And if I'm able to find x, I'm done. So how do I find x? Can I say I'll apply this formula? R is delta upon S, khatam. R is delta upon S. Khatam ho gaya question wahin pe. Are you getting this? Are you getting this? Okay, so what is S? Semi-perimeter. It is 2 root 5 plus 4x upon 2. So S is going to be root 5 plus 2x. So delta square, heroes formula लगा देते हैं. S root 5 plus 2x into S minus A. अच्छा, एक साइड इसकी root 5 plus x है, दूसरी साइड भी root 5 plus x है, तीसरी साइड 2x है. S minus A, root 5 और x हटा दो तो x बचेगा, इसमें भी x बचेगा, और यहाँ पे 2x हटा दो root 5 बचेगा. So this is delta square. So can I say R square is equal to delta square upon S square? So basically root 5 plus 2x into root 5 into x square divided by S square. S square is going to be root 5 plus 2x का whole square. कैंसिल करने का तो अभी हमने पढ़ा था कि मजा ही अलग है. कैंसिल करने का तो मजा ही अलग है. ठीक है. एंड R square is clearly 4. So 4 into root 5 plus 2x is equal to root 5 x square. So we have root 5 x square minus root 5 x square minus 8x minus 4 root 5 is equal to 0. क्या हो रहा है भाई, आज कुछ गड़बड़ हो रही है. ठीक है, तो ये आ गया. नाउ क्लियरली दिस इज द क्वाड्रेटिक. अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर. अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर. अब डन 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 हो गया. स्क्रीन इज विजिबल, इनविजिबल क्या? अब देखो, अब देखो. इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर गाइस? बिल्कुल, यहाँ पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं. देखो, ट्राइंगल ट्राइंगल ए डी सी में पाइथागोरस भी लगा सकते हो. तो पाइथागोरस क्या होगा? रूट 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 plus x square. Getting this? Yeah, Pythagoras भी लगा सकते हैं. Basically, what I wanted to discuss was to make you aware कि यार इसका application होता है, तो मैंने इस method से किया. Otherwise, Pythagoras से तो obviously होता ही है. इसका actual solution Pythagoras से ही है. ठीक है? इसका actual थ्योरम जो solution है Pythagoras से ही है. But I wanted to, you know, put these things in. देखो, कोई भी चीज तुम्हारे दिमाग में कैसे जाएगी जब तुम उसकी बहुत सारी भरपूर एप्लीकेशंस करोगे, भरपूर क्वेश्चंस करोगे उसके थ्रू. राइट. सो ऑफ कोर्स इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो पाइथागोरस से करेंगे. इसका एक्चुअल जो सॉल्यूशन है वो पाइथागोरस से ही है. बट सिंस वी आर लर्निंग स्मॉल आर कैपिटल आर सर्कल्स, तो मैंने इसको इसी तरीके से किया. गॉट इट? चलो, लेट अस डू दिस.
Agnihotra bache, do not do this. Just try to see if you are able to identify, observe anything. So from a point A outside a circle, so this is a circle, let's say C1. Point A outside the circle, two straight lines A, B, C and A, D, E are drawn. Intersecting the circles in B, C, D. A circle is described passing through A, C and D. A, C और D से एक सर्कल बनाया गया, कटिंग बी सी बी ई एट एफ. बी ई को उसने एफ पे कट किया. अब बोल रहा है ए एफ स्क्वायर. सो basically he wants us to find a relation between AF, AD and AE. AF, AD और AE में एक रिश्ता ढूंढना है. तो वो रिश्ता क्या है वो क्वेश्चन. तो मैं क्या करता हूँ यार, इसको थोड़ा सा ना बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, just for you people to understand in a better way. In the meanwhile, try to solve this, guys. Just try. So again, this is again a question of, this is what we call click question. कुछ क्लिक कर गया तो हो गया, नहीं किया तो लगे रहोगे तुम लोग. ठीक है. सो ए, सी और डी से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. ओके. तो सी डी इज ऑफ कोर्स द कॉमन कॉर्ड, ये अब सबने देख लिया होगा. सी डी इज बिकम द कॉमन कॉर्ड नाउ. सी डी इज बिकम द कॉमन कॉर्ड नाउ. लेट अस ड्रॉ द सी डी which is the common chord. ठीक है. So we'll also join AF as shown in the figure. Now, can we chase some angles, guys? So all we need to do is chase some angles. So what is given to us? देखते हैं. AF का square is K times AD into AE. K निकालना है. अब मेरे को ये तो पता है यार, AD into AE is clearly AB into AC. So clearly इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर AF का स्क्वायर अगर मुझे K times AB into AC भी पता लग जाए, that is also good enough for me. AB into AC. So AF square AB into AC. K times AB into AC. So what do we do? What do we do? So can we identify some good things? So clearly यहाँ पे दिखाई दे रहा है some, let us chase some angles. So clearly this angle, अगर ये थीटा है, this, अरे यार, then this angle would be theta again. ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? Also let us join CF. Let us join CF.
What else? What else? So these two angles are theta clearly, because clearly B, D, E, and C are concyclic. What else? What else? Now, clearly, guys, यहाँ देखो. What is that hint? जो मुझे यहाँ पे देखना है. What is that thing that जो मुझे देखनी है? AF square, यहाँ देखो. This length is equal to AB into AC. AB into AC. So AF square is AB into AC. AF square is AB into AC. ठीक है? Because AD into A is AB into AC using power of point. Now AF square is AB into AC. यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है यार, this is somewhere related to exactly Mukesh alternate segment theorem. AF square is AB into AC is more or less like alternate segment theorem, where AF becomes the tangent and AB or AC is का secant है. So basically circumcircle, देखो circumcircle of triangle BCF. BCF का जो सर्कम सर्कल होगा ना, ड्रॉ नहीं किया हुआ, बट BCF का जो सर्कम सर्कल होगा, उसका अगर मैं प्रूव करता हूँ किसी भी तरीके से दैट AF इज अ टेंजेंट एंड ABC इज दैट सीकेंट, सो क्लियरली AF का स्क्वायर इज इक्वल टू AB इनटू AC, कुछ कुछ ऐसा बन सकता है. सो यहाँ पे पूरा ध्यान जाएगा. अब उसके लिए व्हाट एंगल्स डू वी चेज? सो क्लियरली मुझे प्रूव करना होगा कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू ये पूरा एंगल. This angle is equal to this angle. This is what I need to prove. Let's say this is x. Now x is, अगर मैं इसको अल्फा बोल दूं, x is clearly, can I say alpha plus theta? x is alpha plus theta. ये दिखाई दे रहा है सबको? Are you able to see this? And ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये भी दिखाई दे रहा है सबको? Because ADFC is cyclic, so DF subtends same angle at A and C. DF subtends same angle at A and C. This angle is alpha, this angle is. So can I say x is theta plus alpha and x is theta plus alpha? So angle BFA is equal to angle ACF. और अगर BFA ACF के बराबर है तो हमने अभी आज ही स्टार्टिंग में देखा, मैंने बताया था कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्चुअल ऑल्टरनेट सेगमेंट. सो एक्चुअल ऑल्टरनेट सेगमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन तुम करते हो 8वीं 9वीं में 10वीं में, आर डी शर्मा में एंड सो ऑन, बट उसका कन्वर्स देखना, दैट इज द की पॉइंट. दैट इज द की पॉइंट. तो जो वो देखने की आदत डाल गया, उसके बहुत सारी तकलीफें जिंदगी में आसान हो जाती हैं. Are you able to see this? So x is theta plus alpha, so this is also x. So अगर ये x है, ये भी x है, तो clearly AF is tangent to the circumcircle of triangle BCF. So BCF का AF tangent है, कुछ ऐसा सर्कल बनेगा. तो अगर ऐसा टेंजेंट है तो AF का स्क्वायर इज AB इंटू AC. AF का स्क्वायर इज AB into AC, giving us K is equal to 1. Is this clear? Exactly, Abhiram. This is what you need to learn. So if you're not able to see these things, this is what you need to learn. And doing these questions, doing these kind of questions will help you see things. Got it? Got it? Everyone? Yeah. Take your time. Take your time. Yes, Siddharth. What is the doubt, bache? Why x is alpha plus theta? X is alpha. Bache, exterior angle, no? Consider triangle FAE. This is the exterior angle and this is equal to sum of interior opposite angles. Yeah, बच्चे, but AD into AE का वैल्यू स्टार्टिंग में ही हमने प्रूव कर दिया था ना, AB into AC है. बिकॉज एक सर्कल देखो जी, अगर ये सर्कल S1 बोलता हूं तो S1 के रिस्पेक्ट में A का पावर देखो,
सो AD into AE is clearly AB into AC. तो इसकी जगह अगर AB into AC है तभी चलेगा. Got it? सो सर्कल जब इन्वॉल्व है तो यार जितने भी एंगल्स तुम सेम कर सकते हो सेम कर दिया करो. एज सिंपल एज दैट. We can prove AF is tangent to circumcircle of DFE. Where is DFE? DFE. Okay. So basically, अगर ये एंगल तुम थीटा प्रूव कर दो देन वी आर डन. सो थीटा होगा, बिल्कुल होगा. यस. सो बेसिकली यहाँ पर AF is also the tangent to circumcircle of triangle DFE. बिल्कुल. So Siddharth, what do you want to say? I am not getting. So this is true. Okay, so directly, I mean, you're saying so directly हो जाएगा. AF square is AD into A. Yes, yes, yes. Yes, 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 definitely. Okay, so basically what clicks you don't know in the exam. Got it? आयोक्य में तुक्का सबसे सही कौन सा होगा? बच्चे आयोक्य में तुक्का नहीं लगता, जेई में फिर भी लग जाता है. How to how tangent to circumcircle? Okay, okay, okay. Let me go back. यहाँ देखो बच्चे, मैं क्या करता हूँ एक स्लाइड नीचे रखता हूँ. अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसका ये सर्कमसर्कल है, ठीक है, ये टेंजेंट है, तो ये पता है ये थीटा होता है जो, और ये थीटा होता है, ये पता है. इसको क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. ये करवाया होगा मैडम ने स्कूल में, ठीक है जी. इसका कन्वर्स वो भी करवाया होगा, बट उसकी एप्लीकेशंस बहुत कम करवाई जाती हैं स्कूल के अंदर. अब इसका कन्वर्स क्या है? ये ट्राइंगल है, एक लाइन ड्रॉ कर दी गई और बोल दिया गया कि ये जो एंगल है ना थीटा, दिस इज इक्वल टू दिस. इसका मतलब ये जो लाइन है ना, लेट्स से लाइन एल, सो लाइन एल इज अ टेंजेंट टू द सर्कमसर्कल of the triangle ABC. So L is a tangent to the circumcircle of triangle ABC. Is this clear? So this is what we applied here. This is what we applied here. So basically we proved that देखो इस triangle में ACF में ACF में हमने प्रूव किया कि ये एंगल और ये एंगल सेम है. सॉरी, नहीं नहीं नहीं, ACF में नहीं, गलत हो गया. BCF में, BCF में AF लाइन है, हमने प्रूव किया कि ये एंगल और ये एंगल सेम है. तो अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है, AF इज एनी लाइन, और ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम AF इज अ टेंजेंट टू द सर्कमसर्कल ऑफ BCF. और अगर AF टेंजेंट है तो AF का स्क्वायर इज AB into AC. और जो सिद्धार्थ भी एग्जैक्टली ये बता रहा था. सिद्धार्थ क्या बोल रहा था कि सर ये थीटा है तो ये भी थीटा है. सो क्लियरली, अच्छा ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये दिस एंगल इज आल्सो थीटा बिकॉज AD is subtending same angle at F and C. So if this is theta, this is also theta. So सिद्धार्थ बोल रहा है कि सर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ये जो एंगल है, this is same as this angle. So clearly AF is a tangent to the circumcircle of DEF. So अगर AF tangent है, कुछ ऐसा circumcircle बनेगा जिसका AF tangent है, तो AF का स्क्वायर सीधा ही AD into AE हो गया, तो सीधा ही K1 हो गया. Yeah, this was more easier. So this is what we were discussing. What clicks we don't know. So करते रहो बस, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा. चलो.
नाउ दिस क्वेश्चन, ये तो पागल ही कर देगा तुम लोगों को। इतने एंगल चेज करोगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। कार्तिक, फॉर सर्कल्स बच्चे देखो, द मोस्ट कॉमन काइंड्स व्हिच गेट आस्क्ड इन आईओक्यू आर दीज एंगल चेज, जिसमें करना होता है पावर ऑफ पॉइंट लग रहा होता है। thirdly, a lot of questions come which involve the centers of the circle, like in center, circumcenter, ortho center, इनके बीच में relation. So lot of questions are there. Length of angle bisector, length of median, this should be very clear to you. So these are the kind of common questions which get asked in IOCM and geometry. And if you take the printout of all the 5 previous year IOCM papers, pre-RMA papers, and उनको analyze करो, 150 questions के आसपास होंगे, उनको analyze करो, you'll find that तुम्हें अपने आप feel आ जाएगा कि किस सब टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो मैंने सब टॉपिक्स बोले हैं, एग्जैक्टली उसी टॉप सब टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लास्ट ईयर एक स्टीवर्ट से क्वेश्चन था व्हिच वाज अ बिट अनयूजुअल, बिकॉज क्लास के अंदर हम करवाते हैं स्टीवर्ट्स, बट हम ये भी बोल देते हैं कि यार स्टीवर्ट्स टॉलमी के ऊपर ज्यादा चीजें नहीं आती। I mean, anything that you can do with Stewart's, that can also be done without Stewart's. But again, if you know theorems like Stewart's and Ptolemy's and Sievert's and Milenas, it always helps. बच्चे, विल्सन के ऊपर आज तक तो नहीं आया क्वेश्चन, अभी तक तो नहीं आया। एंड अगेन यूलर के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। यूलर टोशन के ऊपर देखो, व्हाट हैपेंस इज, प्लीज अंडरस्टैंड मोहित, यूलर विल्सन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है, सो वो क्वेश्चन बिना यूलर और बिना विल्सन के भी हो जाएगा। जस्ट दैट अगर उसमें विल्सन और यूलर लगाओगे, सीवास लगाओगे, मिलेनस लगाओगे, हो सकता है कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी बन जाए, बट बिना इनके भी हो जाना चाहिए वो वाला क्वेश्चन। सो दिस इज सो दैट इज व्हाई एक स्ट्रक्चर तैयारी से ये सब चीजें तुम्हें फैंसी चीजें, इनको हम फैंसी चीजें बोलते हैं, ठीक है, जो कॉमन मैन मतलब स्कूल जाने वाला बच्चा नहीं, उसको उसको नसीब में, उसके नसीब में नहीं होती। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स which a common man may take a lot of time to solve without these, but if you know these might make your life easy. Yeah, so that is important, bachas. Wilson Euler CRT is very important. It is very important. Just that अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इनके बिना भी हो जाएगा, बट अगर ये लगाओगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। चलो, in the diagram below, so this is a very good question, guys. In the diagram below, ABCD cyclic chord with AB is equal to AC. So AB और AC बराबर है। अच्छा, AB का वैल्यू 6 दिया हुआ है, ठीक है। ऑल्सो BC इज 4, सो BC का वैल्यू 4 दिया हुआ है, डाल देते हैं। BC इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A, सो बेसिकली AE निकालना है। सो 3AE तो सिर्फ उसको इंटीजर बनाने के लिए किया होगा। सो यस, टेक योर टाइम बच्चे, टेक योर टाइम। It is also given that line FG is a tangent to the circle and is parallel to BD. So this is another information that is given. So this is parallel. So prime, do not make use of options here. So options are just given so that you are able to respond. अगर मैं ऑप्शन ना देता तो सब लोग चुप होते हैं। तो कम से कम अब कब कोई ना कोई बोल तो रहा है सर A B C और D, तो हलचल रहती है, इसलिए दैट इज व्हाई ऑप्शन दिए हुए हैं। अदरवाइज द लेक्चर्स गेट वेरी बोरिंग, पर्टिकुलरली वो जो रिस्पॉन्ड नहीं करते वो चुप ही बैठे रहते हैं। So do not make use of the options.
ओके, सो लेट अस डिस्कस गाइस. सो शुरू करते हैं. लेट अस चेज सम एंगल्स. ठीक है. ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, पैरेलल है फिर भी बहुत कुछ दिखेगा. सो क्लियरली दिस इज थीटा मान लेते हैं. अगर ये थीटा है, सो डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस विल बी आल्सो बी थीटा? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. If this is theta, this is also theta. If this is theta, this is also theta. Why would these two be theta? So can you tell me angle BDC अगर theta है तो angle DCG भी theta होगा. Why would this happen? Because parallel. Parallel. Exactly. अगर ये theta है और ये tangent है तो ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि ये भी theta होगा, ये भी theta होगा. दिख रहा है? ठीक है. तो यहाँ पे एक और चीज दिखाई दे रही है. यस, समवन नोटेड कि सर यहाँ से तो दिखाई दे रहा है AC बाइसेक्ट्स एंगल ए. तो हो सकता है कि कुछ एंगल बाइसेक्टर टाइप का कुछ लग जाए. अच्छा, तो AE निकालना है. सो लेट AE इज x. तो EC का वैल्यू क्या है ना सर? 6 माइनस एक्स हो जाएगा. EC विल बी 6 माइनस एक्स. तो मुझे x निकालना है किसी तरीके से. आई नीड टू फाइंड x. अच्छा, यहाँ पर एक और चीज देखो. BC का वैल्यू 4 है. सो ट्राइंगल BCD देखो. ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD, BC is equal to 4. Can I also say that CD is also 4 because theta 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 theta. So CD is also 4. CD is also 4. Got it? Okay. What else? What else? और मैं देखूं, अगर मैं बोलूं कि ये एंगल अल्फा है, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल would also be alpha. This would also be alpha. ठीक है. अब यहाँ पर देखो एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है. बताऊं क्या? एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है. बताऊं क्या? What is what is angle BEC? BEC. Can you chase? Can I say this is theta plus alpha? BEC is theta plus alpha. And what is angle ACB? Angle ACB. Angle ACB same as angle ABC. This is also theta plus alpha. So BEC is BCE. So angle BEC is same as angle BCE. So that means BE is also 4. देख लो, एक सिंपल सा प्रॉब्लम, सिंपल सी चीज दी हो तो क्या 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 निकल गया यार. क्या क्या निकल गया. तो दिस इज व्हाट वी कॉल एंगल चेस. एक सिंपल सा चीज दिया होता तो इतने सारे एंगल चेस किए. तो कितनी सारी ब्यूटीफुल चीजें सामने आ गई. यस. अब मैंने हिंट दे दिया. अब खुद से ट्राई करो यार. जिन लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया, खुद से ट्राई करो. I've given a lot of hint. मुझे एक्स फाइंड करना है. एक्स फाइंड करना है. ये सबको दिख रहा होगा दैट AE into EC is equal to BE into BD. B into ED. So that means x into 6 minus x is equal to 4 into ED. So if I'm able to find ED somehow, अगर किसी तरीके से ED दिख जाए, मजा ही आ जाएगा.
BEC अल्फा प्लस थीटा कैसे? BEC बच्चे, BEC देखो ना, ट्रायंगल्स, ये देखो, ये है C, ये है D, ये है E। वो सही से बना दो। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, एग्जैक्टली वैसे ही बनाता हूँ। यहाँ पर कहीं B है, दिस इज E, दिस इज D, दिस इज C। सो BEC देख रहे हैं, सो क्लियरली दिस इज थीटा, दिस इज अल्फा। सो ये एक्सटीरियर एंगल होगा ना, थीटा प्लस अल्फा। सो कैन यू फाइंड ED फॉर मी गाइस? अगर ED दिख गया तो हो गया क्वेश्चन। एग्जैक्टली सौरदीप। अब देखो यार, बहुत सिंपल सी चीज है यार, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, just consider these two triangles, triangle ABE and triangle ABDCE. Can I say that these two are similar? Theta, theta same, alpha, alpha same, opposite, vertically opposite angle same, vertically opposite angle. ये दो ट्रायंगल मैंने इसलिए लिए बिकॉज यहाँ पर दो साइड्स पता है, 6 और 4, 6 और 4, ये दो साइड्स पता है। आ रही है बात समझ में? 6 और 4, यहाँ पे भी 4 पता है। सो कहना से 6/4 अल्फा के साथ दो एंगल्स जो साथ में, 6/4 दो साइड्स हैं। यहाँ पर भी अल्फा के साथ वाली दो साइड्स कौन सी होंगी? अल्फा के साथ वाली साइड्स कौन सी होंगी? 4/x। ये सही है क्या, गलत किया? अल्फा के, मुझको डीई चाहिए ना, अच्छा सॉरी डीई चाहिए, डी चाहिए तो थीटा के साथ वाली साइड लो, मुझे डीई चाहिए। सो थीटा के साइड साथ वाली साइड्स, सो थीटा के, ठीक है, यहाँ डीई चाहिए, तो इसके सामने है 6 अपॉन, इसके सामने है 4, इज इक्वल टू डीई चाहिए, डीई है अल्फा के सामने, तो अल्फा के सामने है यहाँ पर x एंड यहाँ पे डी, कुछ ऐसा आएगा। सो डीई का वैल्यू 2/3x रख दो यहाँ पे, तो x इंटू 6 - x इज 4 इंटू 2/3x। x भी क्या, 6 - x is 8/3, so x becomes 10/3, 3x becomes 10. Got it? Got it? हम ex EC भी निकाल सकते थे इसी में, इन्हीं दो सिमिलर ट्रायंगल से EC भी निकाल सकते हो। EC को फिर बाद में 6 - x रख दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। Got it? Got it? Got it? Got it? या देयर आर लॉट ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस गाइस। इसको करने के बहुत, जब मैंने एंगल चेस किया और साइड्स 4 4 को बता दी, उसके बाद तो देयर आर लॉट ऑफ वेज। समन सिंह टोल्ड मी आल्सो, सो टोल्ड मी विल आल्सो वर्क हियर। टोल्ड मी जो हमने लास्ट क्लास में किया था, AE बाय सिमिलैरिटी, बिल्कुल सिमिलैरिटी से भी हो जाएगा, एग्जैक्टली। लॉट ऑफ डिफरेंट वेज गाइस, इट इज जस्ट अ मैटर कि वहां पर तुम्हें क्या क्लिक करेगा, यू डोंट नो। लास्ट क्लास मतलब सुबह जो 4 बजे वाली क्लास थी, 5 बजे तब भी थी, आई डोंट रिमेम्बर, 5 बजे वाली क्लास थी, 5 से 6:30। गॉट इट? अरे सुबह ही होता है भाई, हमारे टीचर्स के लिए सब कुछ सुबह होता है। समझ गए? एक बार देख लो इसको अच्छी तरीके से। ओके, ओके। नाउ शुड वी डू वन सब्जेक्टिव प्रॉब्लम गाइस? एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम करें बीच में, थोड़ा कंसेप्ट इंक्रीज हो जाएगा। लेट मी सी गाइस, इफ आई हैव ये रो, सो दिस इज द क्लियर डायग्राम।
This is the clear diagram. So basically this was 4. We proved that this is also 4. We proved that और हमने क्या प्रूव किया, कौन सा 4 था, बी का वैल्यू भी 4 प्रूव किया था. दिस वाज 6, दिस वाज x, दिस वाज 6 minus x EC. And by similarity we proved that DE का वैल्यू 2/3x है. और हमने फिर पावर ऑफ पॉइंट लगा दिया. सो BE into ED is AE into EC. Got it? I think this would be 3 marker. In fact, this is the problem I've taken from Singapore Maths Olympiad. So this is one of the problems, I think 2012 or 13. I don't remember the exact year. So 12-13 का Singapore Maths Olympiad का problem. Yes, amazing problem this. चलो, yeah बच्चे. So yes, Agnihotri, AED, a lot of people saying 90 degrees. So उस मतलब ट्राई करो यार. मतलब I have only given you one solution. There are multiple solutions to this. So if you can find any other thing and उसके थ्रू solve कर सकते हो, it is going to give you a lot of happiness, right? So I'll leave that to you. I've given you one solution. Just explore the other things. So we'll solve one this subjective problem, guys. So BD is the internal angle bisector in a triangle ABC. So this angle is equal to this angle. D on side AC, डन हो गया. Circumcircle of triangle BDC. So BDC का जो circumcircle है, it meets AB at E. BDC का circumcircle meets AB at E, and circumcircle of triangle ABD. ABD का circumcircle meets BC at F. Prove that AE is equal to CF. So अगर ये X है, ये Y है, so we need to prove that X is equal to Y. सिद्धार्थ बच्चे देखो, coordinate bash should be your last resort. So basically, if you are solving a problem and self-practicing at home, and you have a lot of time, bashing would be the last option. So try bashing only during papers. जब तुम एग्जाम्स दे रहे हो, पेपर दे रहे हो, मॉक पेपर दे रहे हो, उसी टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे बैशिंग ट्राई करो. एंड अगर एग्जाम के टाइम पे बैशिंग करते भी हो ट्राई, देन घर आके मतलब घर पे ही हो तुम, आफ्टर द एग्जाम ट्राई टू डू दैट प्रॉब्लम taking a lot of time and try to see the solution if you don't get the solution without bashing. Right? So bashing should only be tried when you are giving the exam. Otherwise, you should not even try. मतलब you should not be trying bashing, because bashing से क्या होगा, तुम्हारी आदत वैसी पड़ जाएगी. So synthetic solutions तुम्हें मिलेंगे नहीं कभी भी. So ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है यार. बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है. या टेक योर टाइम. So these kind of problems look difficult कि यार ये क्या कर दिया सर आपने. तो मतलब एक सिंपल सा ट्रायंगल था, एक सर्कल खींच दिया, दूसरा सर्कल खींच दिया, उसमें भी AE और AFC निकाल रहे हो. So these kind of problems look difficult, but अगर तुम देखोगे, कॉन्सेप्ट में घुसोगे, very easy to solve.
अमेजिंग प्रणव, सुपर प्रणव। अमेजिंग मुकेश। तो देखो गाइस, एक और तुम्हें चीज बताता हूँ। सर्कल दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। दिस गोज फॉर एनी प्रॉब्लम। दिस अ पॉइंट आउटसाइड, पॉइंट आउटसाइड। यहाँ पे कहीं पे भी एक लाइन खींची गई और यहाँ पे इस लाइन के बारे में कुछ पूछा गया है, इस लेंथ के बारे में पूछा गया है। सो ऑलवेज यूज पावर ऑफ पॉइंट, ऑलवेज यूज पावर ऑफ पॉइंट, ठीक है। सो इफ देयर इज अ सर्कल व्हिच इज गिवन टू अस, दिस इज अ पॉइंट आउटसाइड, एंड कभी भी ये कॉन्टैक्ट, मतलब इट मे और मे नॉट बी द टेंजेंट, ठीक है। कोई भी लाइन है इस तरह से कट कर रही है सर्कल को, यहां से लेके यहां तक के लेंथ के बारे में कुछ दिया हुआ, ऑलवेज यूज पावर ऑफ पॉइंट। सो अगेन वी आर, हमने एक्स और वाई में रिश्ता निकालना है, बेसिकली प्रूव करना है कि एक्स और वाई सेम है, एक्स और वाई सेम है। तो मुझे सिंस एक्स है और एक्स क्या दिखाई दे रहा है, एक्स इज ए से ई तक का जो सर्कल में पॉइंट है वहां का डिस्टेंस, तो यहाँ पे पावर ऑफ पॉइंट यूज होना ही होना है। सो कैन आई से विद रिस्पेक्ट टू, लेट्स से इस सर्कल का नाम दे देते हैं E1, S1, लेट्स से दिस इज S1 एंड लेट्स से दिस इज S2। सो पावर ऑफ पॉइंट A with respect to S1, power of A with respect to S1, देखो can I say X into AB is equal to AD into AC, can I say that? तो X का वैल्यू कितना हुआ, AD into AC अपॉन AB, डाल दिया। लाइकवाइज Y चाहिए, तो Y कैसे मिलेगा, पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ C with respect to S2, so Y into CB is equal to, Y into CB is equal to CD into CA, यहाँ से Y का वैल्यू आ गया, दिस इज CD into CA अपॉन CB, हो गया क्वेश्चन। मुझे प्रूव करना है कि यार एक्स और वाई बराबर है। अच्छा, अभी तो एक चीज तो यूज हमने की नहीं, सबसे जो हमारा ब्रह्मास्त्र है, एंगल बाइसेक्टर। सो इफ इट इज एन एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तो लगाई नहीं हमने। सो वी नो दैट AD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो हो गया क्वेश्चन। अब तीन तीनों को यूज करके अपने आप आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई। चेक करके देखो, चेक करके देखो, यू विल गेट दिस, यूज दीज थ्री, यू विल गेट दैट एक्स इज इक्वल टू वाई, राइट। सो समटाइम्स प्रॉब्लम सीम डिफिकल्ट कि यार सर, मतलब अल्टीमेटली, अल्टीमेटली बताऊं, एक चीज बताऊं, हैड आई नॉट गिवन यू दिस स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट अगर मैं सिर्फ तुम्हें फिगर देता, अगर मैं तुम्हें सिर्फ फिगर देता, then this problem would be much more easy. So this is what statement does. So what they try to do is essentially, the paper setters, they try to create a story around a very simple thing. All you need to do is you need to analyze that story and you need to find that crux कि पूछा क्या है, क्या निकालना है. So this is where a lot of people, they falter. They are not able to gauge कि हो क्या रहा है. आ रही है बात समझ में? Yes, exactly, Akshat. This is what I'm saying. ठीक है, तो कहानी बनाई गई। तो अगर मैं सिर्फ ये डायग्राम देता ना, तो मैं अगर मैं डायग्राम देता कि दो सर्कल्स हैं एंड दो सर्कल्स हैं एंड एबीसी है, एडी है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक तरह से कॉमन कॉर्ड इज द एंगल बाइसेक्टर, इस तरह से समझो। देयर आर टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट बी एंड डी, एंड BD इज द कॉमन कॉर्ड, एंड दिस इज बेसिकली द एंगल बाइसेक्टर। तो तुम्हें AE और FC सेम प्रूव करना है। तो यहाँ पे तुम सोचते ही पावर ऑफ पॉइंट, और कुछ सोचते ही नहीं। तुम कंफ्यूज क्यों हो गए, बिकॉज एक ट्रायंगल दिया हुआ था एंड उसका एंगल बाइसेक्टर, फिर दो सर्कल बाद में आए। ठीक है, सो ये मत सोचो कि ये सर्कल बाद में आया पहले आया।
ठीक है। सो और ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि सर्कल दिया हुआ है, बाहर पॉइंट है, यहां से कभी भी इन्वॉल्वमेंट है इस लेंथ का, ऑलवेज यूज पावर ऑफ पॉइंट। गॉट इट? ओके। So last part, guys, common tangents. This is again the most important part. So circle से I am sure कि काफी लोगों को पता है that ज्योमेट्री में आईओक्यूएम के अंदर जो ज्योमेट्री आती है मोस्टली इट इज सर्कल्स. So 3 to 4 to 5, sometimes 6 questions also come from this part. So this is one thing that you need to be very well versed with. The idea is, देखो, मुश्किल क्वेश्चंस अगर नहीं भी हो, 5 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं भी हो, तो बहुत कम जनता से होंगे. द ओनली थिंग इज, इतना बुरा ना हो ये कि यार 2 नंबर वाले क्वेश्चंस और 3 नंबर वाले सिंपल क्वेश्चंस अगर हैं और बाकी जनता कर रही है, हम ना कर पाए. बिकॉज अगेन देखो, एवरीथिंग इज रिलेटिव है. ठीक है, एवरीथिंग इज रिलेटिव है. सो ऑल यू नीड टू मेक श्योर इज सिंपल क्वेश्चन ना हो कि वो नहीं हो रहा. सिंपल क्वेश्चन होना है, सिंपल सी बात. ठीक है, एवरेज कोशिश करेंगे, सिंपल पक्का से करेंगे. मुश्किल चाहे नहीं भी होता यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बहुत कम जनता को होगा. ठीक है. अग्निहोत्रा बचे, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. सो व्हाट आई विल डू इज, ये कैसे करोगे? I'll try. I'll try. This is a good idea actually. I'll try it and make one video on all these uh, important theorems at one place, so that you can memorize them 1 day, 2 day before exam. So next is common tangents. Common tangents. Common tangent to two circles. So there are two circles. So what is how do we find the common tangent to two circles? So basically there are 5 possible scenarios. There are 5 possible scenarios. So one case is one circle is completely inside the other circle. एक circle completely inside the other circle. So this is one case. ठीक है. The other case is one circle touching the other circle internally. This is the other case. तो यहाँ पर number of common tangents is exactly 1. Can I skip this? If you know this, can I skip this? ये पता है सबको? मतलब totally your wish. I'm open to skipping. मतलब I love skipping. Yes. चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है. बट बाय द वे दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके. ठीक है. बस ये एक चीज इंपॉर्टेंट याद रख लेना कि जब दो सर्कल्स हैं बाहर, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. लाइन जॉइनिंग द सेंटर आल्सो मीट्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स. ठीक है. सो इफ दिस इज O1, दिस इज O2, so basically PO1 upon PO2 is always equal to R1 by R2. That is the only important thing. इसके अलावा एक और चीज है, ये लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट. इसमें बेसिकली दिस इज अ स्पेशल केस. दिस. सो अगर एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली. एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. लेट्स से दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट बी. सो अगर इसका रेडियस स्मॉल ए है, इसका रेडियस स्मॉल बी है, तो ये पता होना चाहिए सब लोगों को, जो पता भी होता है, ए बी इज 2 रूट ऑफ ए बी. एंड दिस कैन बी इजिली प्रूव्ड यूजिंग पाइथागोरस. सो अगर मैं ये करता हूं, ये करता हूं, so clearly this is 90 degrees. This is a plus b. ये a है, ये b है, तो this is a minus b. So अगर पाइथागोरस लगाओगे, so ab का स्क्वायर is equal to a plus b का होल स्क्वायर minus of a minus b का होल स्क्वायर. So this is 4ab. So ab is 2 root of ab. That is the only thing that you need to remember. Got it? So just remember this. And मतलब this is very common. मतलब ये एक तरह से थ्योरम ही है. इसको एक बार देख लो, then we'll skip to some questions.
सो या सो देखो जब भी कोई कॉन्सेप्ट करते हो ना तुम, मतलब दिस गोज फॉर एवरीथिंग। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 8th और 9th और 10th में एंड 11th 12th में दे वुड वांट टू टेक अप साइंसेस, इधर मेडिकल और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। सो अगेन वहां पर तो होना ही है। सो दिस इज फॉर एनी कॉन्सेप्ट दैट यू विल एवर डू इन योर लाइफ। सो whatever concept or whatever thing that you're studying, whether it is mathematics or physics or chemistry, be it SST, so there are certain standard questions that you need to do, certain standard things. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने बचपन में मल्टीप्लीकेशन पढ़ा था, तुमने किया होगा यार कि 9 into 6, फिर 11 into 14 करवाया होगा मैम ने, फिर 11 into 15 करवाया होगा मैम ने। सो दीज आर सम स्टैंडर्ड थिंग्स, बिकॉज उसको प्रैक्टिस करोगे देन यू विल मूव ऑन टू सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। सो while studying any concept there are certain standard problems that you have to do, ठीक है, फॉर एनी कॉन्सेप्ट देयर इज, वो करोगे तब यू विल गेट द आइडियाज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स देयर। सो अगर वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम नहीं करोगे खत्म हो जाएगा, मतलब यू विल नॉट बी एबल टू डू। So the question is two circles with radius A and B. So इसका radius A बोल देते हैं, इसका radius B बोल देते हैं। Touch each other externally, ठीक है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। Let's see with the radius of circle that touches these two circles as well as a common tangent. So this is a common tangent. तो इसका जो radius है ना वो C है। So let's say this is capital A, this is capital B and इसको capital C बोल देते हैं। तो मुझे प्रूफ करना है ये चीज। So standard question on the basis of the result that we just did. So क्या होगा, can I say AB का value is equal to AC plus CB? और अभी हमने पढ़ा कि अगर दो सर्कल्स टच करते हैं तो लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट इज 2 रूट ऑफ AB। ए और सी भी देखो एक तरह से टच कर रहे हैं, तो AC इज 2 रूट ऑफ AC प्लस 2 रूट ऑफ BC। रूट ऑफ ABC से डिवाइड कर दो, सो डिवाइड एवरीथिंग बाय रूट ABC, सो विल गेट दिस रिजल्ट 1 अपॉन रूट C इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट B प्लस 1 अपॉन रूट A। गॉट इट? एग्जैक्टली। चलो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना केयरफुली। Siddharth Singh, so guys, you can all note it down. So this is the beauty of these kind of sessions. So knowledge sharing is one of the most important things. So I've always believed fundamentally, and मैं मतलब खुद भी जब पढ़ाई करता था, you know, for IIT JEE. So this is what I've always believed. So अगर तुम देखो दो तरह के लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं। So one is अगर किसी को कुछ ज्ञान मिल जाता है, they would keep it to themselves and they would make sure that their competitors do not get that ज्ञान, because अगर उनको भी पता लग जाएगा तो वो रेस में आ जाएंगे। सो इस वाली थिंकिंग से ना यू विल नेवर एवर क्रॉस द लाइन, एंड इवन इफ यू क्रॉस द लाइन तो अपने पोटेंशियल तक रीच नहीं करोगे। सो टू रीच योर पोटेंशियल it is very important that you share that knowledge. You share that knowledge, it is very important. So like Siddhartha is doing. So Siddharth ने एक बहुत ही amazing बोल रहा है कि there's a problem, he also remembers this problem AMC 12 2015 का problem 25. So just when you get time just note it down and have a look at this problem. So always try to share that knowledge, guys. This is very important lesson that I would want to give you, because I know that a lot of you people are in class 8, 9th, and 10th, and most of you will be preparing for JEE, preparing for NEET also, or NEET. So this is one of the most fundamental things, that share knowledge. It will come back to you. Theory of equation, yes, बच्चे very important. Algebra में तो एक ही तो यार एक चीज है, theory of equations and this sequence series. These are only two things. यही नहीं करोगे तो क्या होगा algebra में? चलो, 4 circles each of radius x. 4 circles यहाँ दिखाई दे रहा है डायग्राम में, and a square are arranged within a circle of radius 8 as shown in the following figure. Number of integral values that x can take. So of course, the circles can increase the size, the circles can decrease the size. तो x की कितनी इंटीजर वैल्यूज हो सकती हैं, पॉसिबल है? x की कितनी इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल है?
So that is the question. So basically, what we'll try to do is we'll try to find the minimum value of x and we'll try to find the maximum value of x. हम देखेंगे कि x मिनिमम कितना हो सकता है, सबसे छोटा सर्कल साइज का, एंड सबसे maximum. Yes, point circle can also be considered if it is possible. Point circle can also be considered. एंड मैक्सिमम किस साइज का सर्कल हो सकता है, एंड इनके बीच में जितने भी इंटीजर्स आएंगे वो आंसर हो जाएगा हमारा. यू गेटिंग दिस? एक मिनट गाइस, I think Siddharth has shared that question. Let us have a look. Oh, that looks amazing, guys. I think, and it is exactly on the similar lines. So this is the question which Siddharth was talking about, and it may look very difficult to you, but again, I think it involves the similar concept that we just discussed. तो उसी क्वेश्चन को बेसिकली जो हमने डिस्कस किया था उसी को मतलब 10 गुना कर लो. 10 गुना क्या मतलब, उसमें बहुत सारे सर्कल्स जोड़ दिए उसने. तो एग्जैक्टली सिमिलर कॉन्सेप्ट. So again you will have to identify a pattern, और पैटर्न जैसे ही आइडेंटिफाई करोगे you'll get the answer. ठीक है, चलो ये करना, कोशिश करना है इसको. अभी हम इस पे आते हैं फिलहाल. Okay, so let us try to find the minimum value of x. Let us try to analyze the case when x or the circle size, the small circle size is going to be minimum. Can you tell me ये कब होगा? Anyone, if you can share in the chat box, when would the circle size be minimum? When would the circle size be minimum? सर्कल साइज मिनिमम कभी हो सकता है क्या, मतलब जीरो कभी हो सकता है क्या? दैट इज द क्वेश्चन. एग्जैक्टली, व्हेन द स्क्वायर टचेस द सर्कल. आर यू गेटिंग दिस? सो दिस सिनेरियो, जब भैया जो स्क्वायर है ना वो सर्कल को टच करेगा, इस केस में बोल सकता हूं कि ये सर्कल का साइज जो है ये वाला मिनिमम होगा. इससे छोटा नहीं जा सकता बिकॉज स्क्वायर ऑब्वियसली बात है बाहर नहीं निकल सकता. So this is going to be the case of minimum x. Now अब मुझे सोच के बताओ what is going to be the minimum x. ये हमें पता है कि बड़े सर्कल का रेडियस 8 है. बड़े सर्कल का रेडियस 8 है. तो ये कितना होगा अगर मैं o लिख दूं, ये लेट्स से दिस इज a. So can I say OA is going to be 8 cos 45, 8 by root 2 or 4 root 2. So 4 root 2 plus 2r is equal to 8 because ये टोटल लेंथ यहां से लेकर यहां तक तो 8 ही रहेगी ना. सो r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 minus 2 root 2. अप्रोक्सीमेटली देख लेते हैं. 4 minus 2 into 1.414. 4 minus 2.8, approximately 1.2. So x minimum is approximately 1.2. So minimum radius इतना तो होगा बॉस. Minimum radius इतना तो होगा बॉस. Now tell me, what do you think is the case of maximum radius?
what according to you is going to be the case of maximum? सिद्धार्थ is saying side zero. सिद्धार्थ थोड़ा सा और अप्लाई करो दिमाग, थोड़ा सा और अप्लाई करो। जब स्क्वायर का साइड जीरो होगा तो पॉसिबल है स्क्वायर का साइड जीरो, मतलब चारों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, चारों सर्कल्स। इज इट पॉसिबल? कैन ऑल सर्कल्स टच ईच अदर? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो कैन आई से so this is the imagination that you need to take care of in examination. तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो होगा, सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं ऐसे, इसके बाद ओवरलैप करने लग जाएंगे, ये बीच में कहीं स्क्वायर बनेगा ऐसा। तो सर्कल एक दूसरे को टच करने लग जाएंगे, दिस सर्कल स्टार्ट्स टचिंग दिस, इसके आगे उसके ऊपर ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। इस केस में स्क्वायर मिनिमम होगा, स्क्वायर का साइज जीरो नहीं हो सकता कभी भी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नाउ इन दिस केस कैन यू टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द रेडियस? रेडियस कितना होगा इस केस में? सो सेंटर टू सेंटर कुछ इस तरह से बन जाएगा। so let's say this is r, this is r, 2r, तो ये कितना होगा? so this is also r, this is going to be OA, OA is going to be 2r cos 45 or root 2r, so root 2r plus r is equal to 8, so r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 upon root 2 plus 1, so that means 8 into root 2 minus 1, 8 into 1.414 minus 4 is 0.414, 3.2. So x maximum is approximately coming out to be 3.2. So how many integral values of x it will take? Exactly two values. एक तो 2 आएगी और एक 3 आएगी. So this is the kind of imagination which is expected out of you in exams like IOQ. आपका कौन सा लैपटॉप है? लैग नहीं करता? Got it? So yeah, these are the two cases, guys. Minimum case, maximum case. जब सर्कल्स एक दूसरे को यहाँ पे टच करने लग जाएंगे, सर्कल्स टच करने लगेंगे आपस में, ठीक है। सो माइन इज HP बचे, HP का लैपटॉप है, काफी अच्छा लैपटॉप है, एक्चुअली कंपनी का है, मेरा नहीं है। इज दिस क्लियर? कंपनी वाले में नेटफ्लिक्स, ये भी ठीक है। नेटफ्लिक्स नहीं भाई, सब कुछ है, डिस्कवरी भी है, प्राइम भी है। एक्स मैक्सिमम अभी बताया ना बच्चे, देखो यहाँ पर बताओ। लेट्स से दिस इज सेंटर, दिस इज सेंटर, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। एक्स है ये, रेडियस एक्स मान लेते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स, सो AB का वैल्यू 2x हो गया। OA का वैल्यू is 2x cos 45, so 2x by root 2, which is root 2x, so root 2x plus x is equal to 8, तो आ गया x। Siddharth said square would form minimum there, but actually square wouldn't form, we would get an upper bound. Square would always get formed बच्चे। When can, just tell me a case जब स्क्वायर बिल्कुल नहीं फॉर्म होगा, हो ही नहीं सकता ना। स्क्वायर तो हो गई होगा, स्क्वायर अगर फॉर्म नहीं हो इसका मतलब चारों के चारों सर्कल्स इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, चारों के चारों सर्कल इस पॉइंट पे मिल ही नहीं सकते ना, कैसे मिल सकते हैं?
अगर इन दो पॉइंट्स का टेंजेंसी ये है तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं आ सकता ना. आर यू गेटिंग दिस? बच्चे ठीक है, क्लियर है, कैन वी मूव फॉरवर्ड? अरे सिद्धार्थ का क्वेश्चन तो अभी तो एक्सप्लेन किया भाई. सिद्धार्थ, आई थिंक तेरी काफी डिमांड है यार, कैन आई अनम्यूट यू? मुझसे ज्यादा तेरी डिमांड है इस सेशन में. हेलो सर. यस यस सिद्धार्थ, यस, व्हाट इज द क्वेश्चन एग्जैक्टली? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सर वो जो मैंने क्वेश्चन एएमसी 12B वाला दिया वो ही अच्छा बोल रहे हैं. सिद्धार्थ, ओ मुझे लगा यू वर आस्किंग अबाउट नो दिस सर. क्वेश्चन. हाँ हाँ, अच्छा, ओके. सिद्धार्थ, लोग तो इस पे सट्टे लगा रहे हैं भाई कि तो इनको क्लियर करेगा इस बार. सर यस, मेक इट ज्यादा काउंट. एक्सपेक्टेशन रख के फिर ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए नहीं, बिल्कुल. एक्सपेक्टेशन अगर होगी तभी तो प्रेशर भी आएगा. प्रेशर इज गुड. ठीक है, सो बस करते रहो, लगते रहो. तुम्हारा काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सो जस्ट इसी तरीके से लगे रहो. आई मीन अगले 20 दिन 25 दिन थैंक सब यू कुछ वेरी सही मच होगा. सर. ऑल द बेस्ट. सर आपका चैनल यूजफुल, मतलब ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कभी रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ तो ओके बच्चे, यूजफुल हो जाता है. थैंक चलो यू सर. बढ़िया बढ़िया. चलो, अपने से अधिक सिद्धार्थ पे भरोसा है मुझे. देखो, सट्टे सट्टे ऐसा करते हैं, सट्टे लगाते हैं यहाँ पे. ठीक है. तो ठीक है, चलो, मूविंग ऑन गाइस. मूविंग ऑन. हम क्या करते हैं, एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं. विल ट्राई एंड डू वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस. प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी. ₹1000 इन वेस्ट. काफी मार्क्स आ गए लोगों को यहाँ पे. या प्रांजल, recordings will be provided बच्चे. Please contact Ashrit after the session. He'll give you recording. सिद्धार्थ ने, मुझे लगता है कि ये ना सेशन हाईजैक कर लिया. Now everyone is after Siddharth. No one is really concentrating on ना भाई, लीव मत कर, तू यहीं पे रह. तेरे साथ माहौल बना हुआ है. तो बढ़िया ना यार, इस तरह का माहौल बना रहे, और क्या चाहिए इंसान को. तो गाइस देखो, अब इस तरह के क्वेश्चंस ये बहुत जल्दी होना चाहिए. इट शुड बी वेरी क्विक. These kind of questions should not take time, should not take like a minute or two. Amazing, Siddharth. I'm very sure this year is going to cross. IUCAM तो चलो हो गई क्लियर. इनमो के लिए डेफिनेटली बढ़िया करेंगे. So क्या है? ABCD is a square of side A. ABCD is a square of side A. ठीक है. Find the radius R of smaller circle. एक छोटा सर्कल दिखाई दे रहा है. Where arc DB and arc AC has centers A and B respectively. तो एक आर्क बनाई having A center DB, एक आर्क बनाई having B a center AC. AC is the arc having B as a center, and BD is the arc having A as center. ये एक सर्कल है जो स्क्वायर को भी टच कर रहा है और इन दो आर्क्स को भी टच कर रहा है. सो इस सर्कल का, इस बेचारे सर्कल का रेडियस बताना है. चलो गाइस, तो इस तरह के क्वेश्चन में गाइस ऑलवेज मेक श्योर, सो व्हेनेवर two circles are involved, always make sure that you join center to center.
हमेशा हमेशा इंश्योर करो कि तुम सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करते हो। हमेशा इंश्योर करो कि तुम सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करते हो। सो बेसिकली ओबी को ज्वाइन कर दो। सो बेसिकली यहाँ से बी एक तरह से सेंटर है इस सर्कल का, तो ओबी को ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। कोई मुझे ओबी का लेंथ बता सकता है? व्हाट इज गोइंग टू बी लेंथ ऑफ ओबी? सो अगर इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, व्हाट इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ ओबी? कैन आई से ओबी इज ए प्लस आर? ये दिखाई दे रहा है सबको? बिकॉज अगर ये लेंथ एक्स है, ये पॉइंट एक्स है, सो क्लियरली बी एक्स का वैल्यू तो ए है, रेडियस ए है, ये भी ए है, सो बी एक्स का वैल्यू तो ए है, दिस पॉइंट इज एक्स, सो ओबी इज गोइंग टू बी ए प्लस आर। ठीक है, ओके। कैन आई से बी डी इज ए बाय टू? एंड व्हाट इज गोइंग टू बी ओडी? ओडी, अब ये पूरा का पूरा ए है, आर हटा दो, सो एडी ए माइनस आर हो गया, खत्म हो गया पाइथागोरस। सो ए प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4। 4ar इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4, खत्म। आर का वैल्यू ए बाय 16। गॉट इट? सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो पूछे भी जाते हैं यार, और ये बहुत सिंपल, बहुत मतलब करने ही है, मतलब देयर इज नो अदर वे। इनको अगर छोड़ दिया तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। इन तरह के क्वेश्चंस को कभी नहीं छोड़ना। तो इन तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो खूब सारी। इनको हम, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टचिंग सर्कल्स। गॉट इट? या बच्चे जो आज के क्वेश्चंस किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ बच्चे आईओक्यूएम लेवल के होते हैं। सम क्वेश्चंस मे बी 2 मार्कर्स, सम मे बी 3 मार्कर्स, सम मे बी 5। ठीक है। कट ऑफ तो यार देखो ऐसा है कि अगर केवीपीवाई पे और कोई रूलिंग नहीं आती एंड केवीपीवाई हैपेंस ऑन द सेम डे एज आईओक्यूएम, so cut off of course will be low because very less 11th class and 12th class students will be giving this examination. So this may be good news for class 8 9 10 students. The cutoff will go down अगर केवीपीवाई सेम डे होता है, 11th क्लास के बच्चे नहीं दे पाएंगे अगर टाइमिंग भी सेम हो जाता है। ठीक है, सो बट इट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल, नो? ठीक है, सो प्रोपोर्शनल नीचे जाएगा। सो तेलंगाना, ऑल द साउथ इंडियन स्टेट्स लाइक तेलंगाना, एपी, इनमें कट ऑफ वैसे ही 30 to 40 के बीच में होता है। तो उसमें मुझे लगता है उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, उसमें थोड़ा सा कम हो सकता है बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स who get who are IOCM qualified from states like Telangana and AP are class 11 students because वो मतलब बहुत पहले जेई का तैयारी शुरू कर देते हैं। जेई का तैयारी अगर अच्छा कर रहे हो तो मोस्ट लाइकली IOCM क्वालिफाई हो ही जाता है, इवन इफ यू डोंट कंसंट्रेट ऑन टॉपिक्स लाइक ज्योमेट्री एंड नंबर थ्योरी। अलजेब्रा कॉम्बी के बेसिस पे एंड बेसिक ज्योमेट्री के बेसिस पे, बेसिक नंबर थ्योरी के बेसिस पे यू आर एबल टू, मोस्ट ऑफ द गुड स्टूडेंट्स आर एबल टू क्वालिफाई IOCM। सो तेलंगाना पे हो सकता है काफी ज्यादा अफेक्ट आए, पर्टिकुलरली फॉर 8 9 10। It might go down, but let's see how it goes. वो यहाँ पे बच्चे हैं जो कार्यक्रम छोड़ रहे हैं। Okay, so guys, I think the time is up. So what I'll do is there's a question. ये पिछले साल का क्वेश्चन है, ये IOCM केवी का। तो एक ये क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन है ये वाला। So these are the two questions. They're amazing. This is a good question. So these are two homework questions for you. इसके solutions are there in the attached PDFs. I'll share both of these PDFs. So this lectures and previous lectures PDF with Ashrit, and वो तुम लोगों से share कर देगा, ठीक है? Yes, yes, I will do that. I'll do that. So this lectures PDF and the next previous lectures PDF, I'll share that with Ashrit, and he'll share that with you. Right. So इनके जो solutions हैं वो already दिए हुए हैं, answers भी दिए हुए हैं. So just try these questions on your own, and उसके बाद अगर नहीं होता तो सोल्यूशन देख लेना, ठीक है? ओके, नाउ गाइस, as I promised, I'm here. If you have any questions, I'm open to the questions. Yeah, viewers camp, yes, 22nd. Yes, see you all there if you're participating.
But yes, before I end, guys, I think this is a super initiative taken by Ashrit, and amazing work done, Ashrit. And again, यहाँ पर भारत में मैथमेटिक्स को ऊपर पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, एंड बिकॉज आई ट्रूली बिलीव दैट एज एन इंडियन, जिस तरीके से उन्नति हो रही है, जिस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, मैथमेटिशियंस या मैथमेटिक्स में भी पीछे नहीं रहना चाहिए, एज सिंपल एज दैट. एंड वन ऑफ द मेन रीजंस इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड इन इंटरनेशनल ओलंपियाड्स इज यहाँ पर 11th एंड 12th पे जेई हो जाता है, एज सिंपल एज दैट. मतलब इट इज purely this reason. 11th and 12th, a lot of people put their attention into JEE, and ऐसा बाहर नहीं है. बाहर में those who know that they want to take mathematics, they take mathematics because there are a lot of different options in mathematics that you can do. यहाँ पर mathematics के नाम पे सिर्फ ISI है, CMI है. इसके अलावा mathematics के अच्छे courses बहुत कम जगह हैं, and courses बहुत कम है. बाहर काफी अच्छी universities हैं, US के अंदर भी, चाइना के अंदर भी, and that is why वहाँ के बच्चे जिन्होंने mathematics लेना, वो mathematics लेते हैं. They don't care about other things, right? So that is one of the main reasons India is not doing well. But I truly believe that India has a lot of potential. तो अगर हम बच्चों पे मेहनत करना शुरू कर दें, 7th क्लास से, 6th क्लास से इन बच्चों को पकड़ना शुरू कर दें, उनको मैथमेटिक्स की तरफ ओरिएंट करें, तो दो फायदे होते हैं. एक तो ऑफ कोर्स इंडिया का रैंक अच्छा होगा. इंडिया इंडिया इज अ लैंड ऑफ आर्यभट्टा, गाइस. तो आर्यभट्टा वाज द फर्स्ट एवर मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड. So we gave the world zero. So I think वो जो मुकाम है इंडिया को वापस मिलना चाहिए, and this can only happen if we raise the standard of mathematics in India, and the work which Ashrit is doing and a lot of other people are doing, that is so welcoming. So thank you, Ashrit. So again, guys, एक बार chat में Ashrit के लिए तालियां मार दो पहले. So he's doing amazing work, and तुम लोगों के लिए इस तरह का बढ़िया कैंप लेकर आया. Again, ये मेरेकल से कम नहीं है. So अश्रित के लिए तालियां मार दो फटाफट से. All right. ठीक है. So yes. ठीक है. तो that is it, guys. I hope you've enjoyed these lectures, and इसका PDF मैं शेयर कर दूंगा, and मिलते हैं यार. मतलब इंडिया को ऊपर बढ़ाते हैं, as simple as that. How would a person celebrate his birthday had it been 29th February? Uh, Good question. 29th February वाला कब मनाता होगा यार? I think 1st March को मनाता होगा, और क्या? So every 4 years there would be a grand party, and every year there would be party. So there is a party, and then there's a grand party. So this is how it goes. ये लार्ज गैप मतलब बहुत बड़े गैप में 30 फरवरी भी होता है. यस. आपका बर्थडे कब है? अगर गिफ्ट भेजेगा तो बताऊंगा. देख, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं. It falls on July 1st. I don't know कि तुमने कितना एस्ट्रोलॉजी पढ़ा हुआ है. मुझे बता दे भाई, मेरा मेरा फ्यूचर कैसा है. How does my future look like if you know astrology? या एंड करें बच्चे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मैं तो डिनर करके आया था, क्योंकि मुझे बात करनी थी तुम लोगों से. टीचर ऑफ आई एम. ओ थैंक यू बच्चा. दिस इज अ ड्रीम. चलो गाइस, व्हाट इज वीओ कैंप? आई थिंक आशित विल टेल यू अबाउट वीओ's कैंप. All right, guys. So it was lovely talking to you all, and you are. देखो यार, मतलब let me end this by this one liner, because आजकल बहुत सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम पे या फिर इस पे वीडियोस पे, चैट पे
मैसेज भेजते हैं कि सर वी आर फीलिंग नर्वस अबाउट द एग्जाम, इट इज ओनली 20 days away. प्लीज, और ये मैं बहुत बार बोल भी चुका हूँ, so let me repeat it one more time, that please understand that the exam that you're going to give on 9th of January, this probably is this probably is the toughest examination that you will ever give in your life, probably. ठीक है, कुछ लोग थोड़े और मुश्किल दे देते हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, वो कौन कौन से एग्जाम्स देते हैं? वो एग्जाम देंगे एनटीएससी, वो एग्जाम देंगे केवीपीवाई एसएक्स, वो एग्जाम देंगे जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, वो शायद बड़े होकर कैट का एग्जाम दे देंगे एमबीए के लिए, वो जीआरई का एग्जाम दे देंगे, जी मैट का एग्जाम दे देंगे बाहर जाने के लिए, सैट का एग्जाम दे देंगे बाहर जाने के लिए। इन सब में से सबसे मुश्किल एग्जाम डिफिकल्टी वाइज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपटीशन, नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपटीशन, कंपटीशन हो सकता है बाकियों में ज्यादा हो, बिकॉज भीड़ होती है आईआईटी के एग्जाम में, 10 लाख लोग देते हैं। I'm only talking in terms of the difficulty level. This is probably the toughest examination that you will give. ठीक है? So अगर toughest examination and you have chosen to study for it, you've chosen to prepare. So the day you chose to prepare for it, it already made you the winners. तुम already winners बन चुके हो, because तुमने choose किया है इस tough examination के लिए prepare करने के लिए। तो अब चिंता मत करो, ठीक है? So you already are winners in front of my eyes, and मेहनत का ना फल कभी ना कभी कैसे ना कैसे मिलेगा। हो सकता है कि मेहनत का फल तुम्हें आईयूक्यूएम सर्टिफिकेट से मिले, मेहनत का फल तुम्हें इनमो के लिए क्वालिफाई होने से मिले, मेहनत का फल हो सकता है तुम कैंप जाके मिले, हो सकता है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करके मिले, हो सकता है इंडिया के लिए मेडल लेके आने को मिले, बट मिलेगा। हो सकता है कि ये मेहनत इनडायरेक्टली जेई के लिए काम आई, हो सकता है मेहनत इनडायरेक्टली आगे जाके कैट के लिए काम आएगी, बट कभी ना कभी कैसे ना कैसे काम आएगी ही आएगी। सो डू नॉट वरी अबाउट कि what will happen on 9th of January or on the result day. Just give your best shot. बिंदास पढ़ो, अच्छी मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, बिकॉज ये प्रैक्टिस कभी वेस्ट नहीं जाने वाली। एज सिंपल एज दैट। ठीक है? सो यू ऑलरेडी आर विनर्स, एंड कैसा भी एग्जाम हो, बस अपना फुल दे के आओ यार, सिंपल सी बात, बेस्ट देकर आओ। गॉट इट? आईओएम सीआरटी का क्या करें? आई डिड नॉट गेट सिद्धार्थ योर क्वेश्चन। आईओएम सर्टिफिकेट का क्या करें? अच्छा, सर्टिफिकेट का क्या करें? सजा के रखो यार, सजा के रखो, एज सिंपल एज दैट। मतलब देखो, अगर आईओएम सर्टिफिकेट भी मिलता ना, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, इट इज गोइंग टू गिव यू। आज बताऊं क्या हुआ? आज आई वाज टॉकिंग टू माय वन ऑफ माय पीपल, एक मार्केटिंग का बंदा था हमारे वेदांतों में। तो आई वाज टॉकिंग टू हिम, ही सेड सर देयर एक बहुत अच्छा बच्चा है, उसने ये फिजिक्स ओलंपियाड 10th क्लास में फिजिक्स ओलंपियाड क्वालिफाई किया है, इनमो क्वालिफाई किया हुआ है, जीएस जूनियर साइंस क्वालिफाई किया हुआ है, एक बार बात करो ना आप उससे। तो मैंने कहा यार मतलब हाउ डू यू नो कि क्वालिफाई किया? तो कहता है कि सर उसने मुझे बोला फोन पे। मैंने कहा कि मतलब कोई भी बोल सकता है, लेकर आओ, आई मीन प्रूफ मांगो। तो ही सेंट मी सम व्हाट्सएप मैसेजेस, आई मीन उसने जो प्रूफ पे दिए थे, तो मैंने वो देखे। सो आई रिकॉग्नाइज वन ऑफ द सर्टिफिकेट्स जो उसने दिया था। तो बेसिकली जो ये होता है ना फिजिक्स ओलंपियाड जो क्वालिफाई करता है, सो आईएपीटी का सर्टिफिकेट होता है। तो आईओपीटी का मैंने कभी देखा नहीं हुआ था, मतलब मुझे पता होता था, आई हैव नोन अ लॉट ऑफ गुड स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड आईओपीटी फिजिक्स ओलंपियाड, हु हैव टॉट फॉर जेई, बट वो कभी सर्टिफिकेट नहीं देखा था मैंने अपनी टीचिंग करियर में। बट जब उसका सर्टिफिकेट देखा ना, तो आई कुड रिकॉग्नाइज कि यार ये सर्टिफिकेट तो है मेरे पास, ऐसा सर्टिफिकेट तो मैंने देखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, अपनी अपनी सर्टिफिकेट फाइल जो मैंने मतलब अब 10-15 साल पहले बनाई थी, एग्जाम कॉलेज के प्लेसमेंट के, आईआईटी के प्लेसमेंट के टाइम पे, सो आई ओपन दैट फाइल। तो वहां पर मुझे सेम सर्टिफिकेट मिला आईएपीटी का। ठीक है? एंड सो मुझे आज पता लगा कि आई एम एक्चुअली अ फिजिक्स ओलंपियाड क्वालिफाइड। मैंने फिजिक्स ओलंपियाड क्वालिफाई किया, मुझे आज पता लगा।
ठीक है, बिकॉज होता क्या था हमारे स्कूल के टाइम पे ना, स्कूल के टाइम पे इतने एग्जामिनेशन होते थे, ओलंपियाड होते थे, देते रहते थे, हमें कौन सा पता है कि यार कौन सा गवर्नमेंट सरकारी है, कौन सा। मैंने एसओएफ भी दिया हुआ है, मैंने तो मतलब पता क्या क्या दिया हुआ है, और सर्टिफिकेट भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो मेरे को कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि यार ये इसकी औकात इतनी बड़ी है। सो आई क्लिक दैट फोटोग्राफ एंड आई सेंड टू ऑल माय टीम मेंबर्स कि यार ये देखो, अब ये है, मेरी जितनी रिस्पेक्ट है ना, अब टू फोल्ड होनी चाहिए। सो दिस इज द मैसेज आई सेंड टू माय टीम। तो आज मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया ना वो सर्टिफिकेट देख के। इवन दो मुझे फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती इस टाइम पे, आई आई डोंट रिमेम्बर एन आयोटा, मतलब बहुत कम फिजिक्स आती है अपने टाइम पे। इवन दो आई हैड सॉल्व्ड बुक्स लाइक इरोडोप, अच्छी बुक सॉल्व की हुई थी मैंने। बट आज के टाइम पे इट्स बीन 10-11 years since I passed out of IIT. बट आज के टाइम पे आई डोंट नो एनी फिजिक्स, बट दैट सर्टिफिकेट गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार मजा आ गया, मजा आ गया। अच्छा ये होता फिजिक्स ओलंपियाड वाला बच्चा, मतलब मैंने देखा और मैंने पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे, बट आई नेवर न्यू कि यार मैं भी फिजिक्स ओलंपियाड क्वालिफायर हूँ। So these kind of things give you a lot of confidence, right? So that is one thing. And of course I remember that ये वाला जो सर्टिफिकेट है मैं कहीं ना कहीं वहाँ पे अपने रिज्यूमे में लिखा ही था जब मैं प्लेसमेंट के टाइम पे गया था। तो मैं नहीं बोल रहा कि इट वुड हैव हैड एन इफेक्ट ऑन द इंटरव्यूअर और उसने मुझे सिलेक्ट किया होगा, बट कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। जिन लोगों को पता है, उन लोगों को पता है कि आईएपीटी की क्या इंपॉर्टेंस, आईओक्यूएम की क्या इंपॉर्टेंस है, वो मुझे बाबा के सर्टिफिकेट की क्या इंपॉर्टेंस है, उनको पता है। So again, these always can be your resume points. हाँ, इनमो मेरिट तो यार अलग लेवल पे हो गया सिद्धार्थ, इनमो मेरिट तो अलग लेवल पे हो गया, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट these are the examinations, very prestigious examination, and सब लोगों को पता है that how prestigious are they, how difficult are they, and even if मतलब अगर तुम आईओक्यूएम सर्टिफिकेट होल्डर भी हो, then also मतलब it is recognizable. ठीक है, एग्जैक्टली। सो सर्टिफिकेट्स दिस यस, सो जितने अच्छे सर्टिफिकेट्स होंगे उतना बढ़िया तुम्हारा प्रोफाइल बनेगा, एंड ऑफ कोर्स जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं दे वैल्यू दी सर्टिफिकेट्स अ लॉट। ठीक है, चलो, सो काफी बातें हो गई यार।